Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 20th July 2020. So let us see which are the important articles that have appeared in today's The Hindu newspaper. So some articles for men's examinations perspective, let us see one by one these articles. So first article, make the right call on Malabar going quad. So recently we know that in the Hindu newspaper there was headline that yes, there was a high level meeting regarding, let's say, taking decision on including Australia in this Malabar exercise. So basics about Malabar exercise आपको पता है कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया यूएस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद हमने जापान को उसमें इंक्लूड किया था और अभी जो डिमांड है ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने की तो उसके ऊपर अभी डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द ही और ऐसा बोला जाता है कि यस देयर कैन बी इंक्लूजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन दिस क्वाड ग्रुपिंग. नाउ व्हाट आर द implications of this including Australia into Malabar exercise? We need to understand that there is a informal quad grouping of 4 democratic countries in Asia Pacific let's say region. Which are these 4 countries? India, Japan, US and Australia. Okay, सो इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया इनको क्वाड ग्रुपिंग बोला जाता है. ठीक है, तो चारों के चारों एक इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज है जिनका डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा फोकस है एंड देयर फोकस एंड यू कैन सी द क्वाड. ठीक है, 4 ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे कहीं ना कहीं एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है उसका वो एक काउंटर बैलेंस करने के लिए वो ग्रुपिंग बनाया गया था. राइट, now by including Australia in this Malabar grouping we are going to militarize this quad grouping. Okay, and there will be some implication because since let's say in its inception China has been opposing this and consider this quad grouping. You can see here the Chinese leadership sees the maritime quadrilateral as Asian NATO that seeks only to contain China's rise. तो चाइना को कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर कंसर्न है. ठीक है, तो हमने वो ध्यान रखना चाहिए पहले अगर डिसीजन लेना है. दूसरा आर्गुमेंट उन्होंने दिया है इस आर्टिकल में, व्हेन दिस इज नॉट द करेक्ट टाइमिंग एक्चुअली. ठीक है, तो क्यों करेक्ट नहीं है? अभी रिसेंटली हमने देखा है कि देयर वेर क्लैशेस इन गलवान वैली रीजन अलोंग एलएसी इन लद्दाख. राइट, and just now we are just having, let's say, de-escalation and de-engagement process going on, and simultaneously we cannot provoke China by including Australia in Malabar exercise. Right, so this is contrary to the signals to Beijing. हमने अभी क्या बोला था बीजिंग को कि ये de-escalation और de-engagement जो प्रोग्राम हमने steps लिए थे, so we wanted to have, let's say, peace and stability. We wanted to have peaceful relations with China, and by including this Australia in the Malabar exercise, this will provocate. This is the provocating action against China. Unlike US and its Pacific partners, whose principal motivation is forming the maritime coalition, is to implement the rule-based order in Indo-Pacific littorals. While India's priority is to acquire strategic capabilities to counter Chinese naval presence in Indian Ocean. तो हमारा क्वाड ग्रुपिंग में फोकस क्या है या हमारा इंटरेस्ट क्या है इंडिया का? द ओनली इंटरेस्ट दैट वी हैव, और लेट्स से फोकस interest we have, is that we need to have some kind of maritime capabilities, specifically anti-submarine technology. Okay, so anti-submarine. So developing capability in this aspect is very important for us, and that's why the quad grouping is having significance. And yes, the argument is saying that we do not have, let's say, coherent objective with other 3 countries. उनको चाहिए रूल बेस्ड ऑर्डर इंडो पैसिफिक रीजन में, तो हमारा कोई और ही चीज़ का मोटिव है. ठीक है, तो वो मैच नहीं करता है. US defense companies hesitant to part with proprietary technology, in particular vital anti-submarine warfare technology. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है. ठीक है, कि अगर हम उनको एक्सरसाइज में इन्वॉल्व भी करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो ये सारी चीज़ें फ्यूटाइल है कहीं ना कहीं. ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम
फ्यूचर में कर सकती है, रादर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है इसके, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या चीज़ है, तो जब तक हम हमारे कैपेबिलिटीज़ पे फोकस नहीं करते हैं बढ़ाने की, तब तक ये कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा आर्टिकल में बता रहा है। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट military quad will be used to draw India into security dynamics of the Asia Pacific. So we do not want to get involved in, let's say, unnecessarily security dynamics of, let's say, South China Sea, Eastern China Sea, जो वहाँ पे चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते राइट नाउ, ठीक है। डिस्पाइट ए ग्रोइंग प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, द प्लान पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, जो चाइना का हम बोलते हैं कि वो आर्मी और नेवी का नाम है, इज प्लान इज येट टू फिजिकली थ्रेटन इंडियन इंटरेस्ट एट द सी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अभी तक हमें कोई भी किसी भी तरीके का फिजिकल थ्रेट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है चाइना की तरफ से इंडियन ओशन में। तो जब तक हमें कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, व्हाई वी आर, लेट्स से, फोकसिंग ऑन प्रोवोकिंग चाइना बाय इंक्लूडिंग or let's say militarizing quad grouping. Okay, so these are some, let's say, argument against, or we can say, let's say, very critical of including, let's say, Australia in the quad grouping, Malabar exercise and militarizing quad grouping. So that's why a conclusion or way forward can be a very good statement. The sobering reality for New Delhi is that naval coalition building alone will not credibly deter Chinese naval power in the Indian Ocean. Rather, upgrading the trilateral Malabar to quadrilateral without acquiring the requisite combat and deterrence capability could yield gain for India in short term but would prove ineffective in long term. ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स जो है उसके नोट डाउन करने चाहिए अगेंस्ट, ठीक है, फाइन. सो यस, what kind of question we can expect? What might appear politically sensible could be operationally imprudent. With reference to this statement, examine the idea of militarizing quad grouping. ऐसे आपको GS2 में IR में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. तो आपको ये आर्ग्यूमेंट्स रेडी रखने हैं उसमें आंसर लिखने के लिए. फाइन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. वाई ए सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ. ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो उसका मतलब क्या है कि ये हमें सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ की ज़रूरत है क्या, उसके लिए ये आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस करता है. तो आर्टिकल का इसेंस ये है, या बैकग्राउंड में कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोल सकते हैं कि रिसेंटली जो तमिलनाडु में टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर का जो केस हुआ था, फादर एंड सन का डेथ हुआ था, regarding this the article is specifically talking that we do not need any separate anti-torture law, rather there are enough provisions in the existing laws and there have been guidelines by NHRC and Supreme Court from time to time. Okay, so what are these guidelines, what are these provisions, ये आपको एक थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए. और कहीं ना कहीं हमने जो ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल लाया था, द प्रपोज्ड बिल, that was not sufficient, rather it was antithetical to what we require at present. तो वो भी एक आर्गुमेंट देखते हैं, ठीक है. तो डू वी रियली नीड अ सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है. GS2 में गवर्नेंस है या सोशल जस्टिस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन उस तरीके से. टॉर्चर इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड बट डेफिनेशंस ऑफ हर्ट एंड ग्रेवियस हर्ट आर क्लियरली laid down. Though the definition of hurt does not include mental torture, Indian courts have included psychic torture, environmental coercion, tiring interrogative prolixity, overbearing intimidatory methods. ये सारा पहले से ही उन्होंने उसके एम्बिट में लाया हुआ है टॉर्चर के. Voluntary causing hurt, grievous, let's say hurt to extort confession are provided in the code with enhanced पनिशमेंट, ठीक है. तो अंडर CRPC जो है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वायर्स इनटू एवरी कस्टडियल डेथ. तो ऐसे कुछ प्रोविजंस पहले से ही है, ठीक है. उसके बाद में गाइडलाइंस बोलते हैं NHRC की
laid down specific guidelines for conducting autopsy under camera. ठीक है, तो सारे जो प्रूफ्स वगैरह होने चाहिए तो वो अंडर कैमरा ऑटोप्सी होता है डेथ बॉडी का. Supreme Court judgment in DK Basu case was turning point in evolving jurisprudence on custodial torture. The court's decision in Nilavati Behra case made sure that state would no longer escape liability in public law and had to be compelled to pay compensation अगर ऐसा कुछ होता है तो. ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोविजंस है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहले से ही एग्जिस्टिंग लॉज और रूल्स रेगुलेशंस है. रादर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हियर आपको वे फॉरवर्ड में हम उसकी बात करेंगे कि द इन्वेस्टिगेशंस प्रोसिक्यूशंस आर नॉट फेयर, दीज मस्ट बी रेक्टिफाइड फर्स्ट. ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता ने स्टेटमेंट दिया था. द पुलिस नीड्स टू बी ट्रेन बेटर. The temptation to use third degree methods must be replaced with scientific skills. ये हमें पता है, कभी आप हॉलीवुड की मूवी देखते हो तो आपको पता है कि बड़े से क्रिमिनल से भी विदाउट टॉर्चर ऐसी कुछ स्किल्स उनके पास होती है कि वो जो हम बोलते हैं कि टेक्निक्स यूज़ करके वो उनसे सच निकलवाते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं. तो वो एक साइंटिफिक स्किल्स है, टेक्निक्स है, तो उसके रिगार्डिंग हमें हम बोल सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए. एट द सेम टाइम रेटिफिकेशन ऑफ यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, कैट जिसको बोला गया है, तो उसका रेटिफिकेशन होना चाहिए. अब तक हमने वो 1997 में, ठीक है, इसको 1997 में हमने साइन किया था बट वो रेटिफाई नहीं हो पाया है अब तक. ठीक है, तो उसके रेटिफिकेशन की ज़रूरत है. नाउ लुकिंग एट दिस बिल, ये बिल कैसे एंटीथेटिकल था, तो इट वॉज वेरी वेग, हार्श एंड रिट्रीब्यूटिव इन नेचर. रादर दिस बिल वॉज लेट्स से एक्टिंग एज एन इम्पीडमेंट टू डिस्चार्ज पुलिस इट्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट फियर एंड प्रोसिक्यूशन एंड फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड परसिक्यूशन. उन्होंने बहुत ही टफ मेजर्स डाले थे इसमें. ठीक है, और उसकी वजह से जो पुलिस इंस्टीट्यूशन है ठीक से काम नहीं कर पाता. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. गाइडलाइंस है, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस जो है, और वे फॉरवर्ड. ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है. क्रिटिकली एग्जामाइन द नीड ऑफ हैविंग ए सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ. ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामाइन जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन स्टेटमेंट को ज़्यादातर निगेट करना है, ज़्यादातर, पूरा नहीं. ठीक है, आंसर में. तो वी कैन से दैट अप टू 60-40 फार्मूला है या फिर 70-30 फार्मूला यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, कि ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन को निगेट करना है क्रिटिकली एग्जामाइन में. ठीक है, और रिमेनिंग जो है 30 या 40% वो उसको एक्सेप्ट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है. ठीक है, तो नीड है यहाँ पे बताना है तो वो 30% ही बताना है या 40%, बट ज़रूरी नहीं है. इसके आर्गुमेंट जो हमने यहाँ पे देखे हैं ना, ये सारे वो 60 या 70% में आंसर में, स्ट्रक्चर में आने चाहिए. ठीक है, सो यस, सो लाइकवाइज यू कैन स्ट्रक्चराइज एंड प्रिपेयर सच काइंड ऑफ नोट्स एज वेल एज आंसर टू दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन, इस पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हमने फ्रेम किया है, तो एक नया टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. देख सकते हो आप क्या होगा इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस हैव बीन साइन्ड बाय इंडिया बट नॉट रेटिफाइड येट. ठीक है, तो ये तो कन्वेंशन है पहला, अभी हमने देखा है कि वो साइन किया है और अब तक रेटिफाई नहीं किया है. वैसे ही ये भी एक हम बोलते हैं कि कन्वेंशन ऑन नेशनलिटी ऑफ मैरिड वेमेन, तो साइन तो किया है ये बट नॉट रेटिफाइड येट. ठीक है, तो ये जो है अभी तक हमने साइन ही नहीं किया है. ठीक है, तो रेटिफाई करने का सवाल ही नहीं आता है. ओके, कन्वेंशन ऑन हाई सीज. सो इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट है MEA का कि अब तक हमने यूएन कन्वेंशन कौन से साइन किए हैं और रेटिफाई नहीं किए हैं या कौन से साइन नहीं किए. तो एक PDF डॉक्यूमेंट है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. यस, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ एट लेट्स से नॉट डोकलाम, वी कैन से गलवान वैली रीजन, और वहाँ पे अभी हम फॉलो अप लेंगे. इस आर्टिकल में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है आपके एग्जामिनेशन के लिए. नाउ द रिपोर्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन बाउंड्री क्वेश्चन, ऐसा एक MEA का रिपोर्ट है. ठीक है, या जो पब्लिकेशन है
तो उसमें बाउंड्री निगोशिएशन जो हुए थे 1960 में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, राइट. सो about this information, now we have understood that the present location of Galwan Valley clashes is, let's say, contrary to what the negotiations or LAC was fixed in 1960, or let's say claimed by China in 1960. ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे एट द नॉर्थ बैंक हम देखते हैं records contradict China's current claims of LAC. At the north bank of Ponggang So, a PLA moved to up to finger 4 and prevented India from crossing finger 4. ये फिंगर्स क्या होते हैं हमने देखा था, देखिए यहाँ पे भी फिर डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं. ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 ये माउंटेन रिजेस है और माउंटेन टॉप जिसको बोलते हैं ना. ठीक है, तो उनको नंबरिंग दी गई है 1 to 8 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो चाइना नाउ क्लेम्स अप टू फिंगर 4 while India says that LAC is at finger 8. आप एक छोटा सा डायग्राम निकालिए, बीच में पोंगयांग सो लेक दिखाइए, नॉर्दर्न साइड में आप दिखाइए कि ये 1 to 8 जो है फिंगर्स है, और इंडिया का क्लेम कहाँ तक है, फिंगर 8 तक. वाइल चाइना बोलते हैं कि अभी वो उनका क्लेम जो है जो 4 तक है. ठीक है, अभी जो डी एस्केलेशन प्रोसेस हुआ है after corps commander level talks, PLA has moved back from finger 4 to finger 5, while Indian troops are moved back further west to finger 2. ठीक है, तो हम पीछे आ गए हैं फिंगर 2 तक और वो फिंगर 5 तक वापस चले गए हैं. ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं टू सपोर्ट द आर्गुमेंट एंड दिस डायग्राम्स. ये डायग्राम्स पता होने चाहिए कि गलवान वैली जो है ये क्लैश यहाँ पे हुआ था. ये चाइना का 1960 का क्लेम है. ठीक है, ये जो है लाइन, तो साइट ऑफ लेट्स से क्लैश, यहाँ पे क्लैशेस हुए थे, ये देख सकते हैं आप. ठीक है, तो उन्होंने क्लेम तो यहाँ तक किया था और अभी वो आगे जाके यहाँ तक आ चुके हैं. ठीक है, तो ये बोल सकते हैं चाइना का करंट क्लेम है. ऐसे आप ये ड्रॉ कीजिए एग्जाम में, आप अच्छे से दिखा सकते हैं गलवान वैली, गलवान रिवर. ठीक है, ओके फाइन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, कोविड-19 डिलेज पीएम्स म्यूजियम वर्क. तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं कि यस, म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स, ये एक नया उन्होंने म्यूजियम तैयार करने का 2018 में शुरू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. ठीक है, what was the site being developed at Teen Murti Estate, which also houses the Nehru Memorial Museum and Library. तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे NMML ये भी है. तो ये क्या है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है. तो ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है इससे. The prime objective of museum is to provide visitors better understanding and create curiosity among them about the different individuals. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे पुराने, उनके बारे में, और ये जो इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर की, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये एक म्यूजियम बनाने वाले हैं. ठीक है, तो उसमें 3D कुछ डिस्प्लेज होंगे, टच एनेबल डिस्प्लेज होंगे, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्शंस वगैरह होंगे, होलोग्राम्स. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 226.20 करोड़. ये एक्चुअली अभी अक्टूबर में कंप्लीट होने वाला था, तो वो डिले होने वाला है नवंबर तक. ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए. फिर इस पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो चांसेस कम है कि म्यूजियम प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम पे क्वेश्चन ना आके इस पे क्वेश्चन आ जाए बेसिक. ठीक है, तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी जो है इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड में हमें पता होनी चाहिए. फाइन. सो दीज वेयर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. नाउ कैप्शंस एंड कोटेशंस, ये आप देख सकते हैं दोनों आर्टिकल जो है वो IR से रिलेटेड थे, इंक्लूडिंग दैट लेट्स से क्वाड ग्रुपिंग एंड मालाबार एक्सरसाइज के ऊपर जो आर्टिकल हमने देखा था. फाइन, तो आप ये उसमें ऐड कर सकते हैं दोनों कैप्शंस जब भी आएगा, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे आता है तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है. व्हाट माइट अपीयर पॉलिटिकली सेंसिबल कुड बी ऑपरेशनली इम्प्रूडेंट. ठीक है, तो ऐसे में भी यूज़ कीजिए आप वो. फाइन. सो दीज वेर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर.
So for further information regarding, let's say, editorial discussion classes wherein the in-depth analysis of mains related questions, which is very important for, let's say, a perspective building and opinion creation regarding very important socio-economic and political issues along with other environmental and let's say internal security issues. So this is done by Ansari sir and team. For the course, more information regarding that course you can contact Lukman IAS. Thank you.